Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our regular weekly Thursday evening Bhagavad Gita class. So today, being Teachers' Day, we will discuss about the relation between teacher and a student and how a teacher should be and how a student has to be, as per the scriptures. So I think we already discussed about the qualities of a teacher, but we will have a small, fast recap of what that is. Can anyone tell me? पूजा माता जी आप ही बता दो, बाकी लोग तो वीडियो बंद करके बैठे हैं तो उनसे पता नहीं चलने वाला. Kindness, empathy. हाँ. Kindness and empathy. Kindness and empathy. Not at all. Okay. The more strict the teacher is, the better the output is. गुरु वो होता है जो हमें बताता है पहले कि कौन भगवान है और फिर वो हमें भगवान से मिलाता है, वो राह दिखाता है कि कैसे हमें भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान से मिलते हैं. Here, Mataji, we are not teaching, we are talking about just a teacher. Teacher in the layman's language is one who teaches them English, Hindi, maths, history, geography, and so on. Here we are talking of teacher in the sense of a guru. Teacher in the material world is someone who's doing it as a profession, earns his bread and butter from the profession. But as per Shastra, a guru is one who teaches you in lieu of nothing. कुछ भी नहीं लेता गुरु आपसे और गुरु आपको ज्ञान देता है. So that is the first thing you have to understand, the difference between a teacher and a guru. Actually, a teacher was also like that. हमारे वैदिक काल में, that is when we used to have gurukuls, तब टीचर कुछ भी नहीं लेते थे. एक गुरु दक्षिणा होती थी, एंड गुरु दक्षिणा इज एट द एंड ऑफ द स्टडीज. पूरी पढ़ाई पूरी होने के बाद टीचर को कुछ गुरु दक्षिणा दिया जाता. बाकी वो लोग गुरुकुल में श्रम करते और गुरु का ख्याल रखते और जंगलों में से लकड़ी लाना, गुरु माता को मदद करना, बस ये सब कार्य करते. So of course we had at large a full lecture on Guru Tattva, who a guru is and how you identify a guru. And a guru is one who doesn't teach you only the material things, okay, the earth is round. What's so great? हम लोग स्कूल में the geography subject itself is called as भूगोल. इसका मतलब क्या है? भूगोल मतलब भूगोल है. तो इसके लिए पूरा एक चैप्टर, 2-3 चैप्टर पढ़ना पड़ता है अपने को स्कूल में. You go to the horizon is round, you see from the moon the earth is round. अरे इतना सब चक्कर क्या है? हम लोग ने एक ही दिन में पता चल गया. जब वरादेव धरती को समुद्र के अंदर से लेके आए तब अपने सिंह में टस्क he bought वरादेव धरती को लेके आए. वो कैसे लेके आए? How was it thing? It is depicted in the Shastra. It was like a full football. So we know the earth was round. So material education is good and it is enough to feed your belly, fill your belly. But शास्त्रिक education, that is आध्यात्मिक ज्ञान जो है, उससे व्यक्ति का आत्मा तुष्ट होता है और आध्यात्मिक ज्ञान से जो शिष्य होता है वो वापस भगवत धाम जा सकता है. पर सबसे बड़ा चीज उसके पहले ये समझना है हम लोगों को कि एक शिष्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और किस प्रकार एक गुरु के पास जाकर ज्ञान लेना चाहिए. The two qualities which we are going to learn today. Qualities in a teacher, in a student, which is required first, and secondly, how he has to approach a spiritual master and take knowledge. So most of you all, आप लोगों ने ज्यादा करके किसी ने भगवद गीता पढ़ा नहीं होगा. ललिता माता जी, have you read the भगवद गीता? हाँ गुरुजी, मैं पढ़ती हूँ. हाँ, पढ़ती हूँ.
पढ़ती हैं। तो पहले अध्याय में कृष्ण क्या कहते हैं माता जी? पहला अध्याय नहीं पढ़ा मैंने, सेकंड से पढ़ा जी। अच्छा, सेकंड से पढ़ो। सेकंड में कृष्ण क्या कहते हैं? मतलब एक श्लोक में मतलब बोलते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वो तो बाद में है ना, पहले स्टार्टिंग में क्या बोलते आई थिंक हम याद नहीं है। हैं? ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। भगवत गीता चैप्टर 1 में कृष्ण एक शब्द नहीं बोलते। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ भगवत गीता। He doesn't speak a single word. He starts speaking in the second chapter. But in the second chapter of Bhagavad Gita, go to verse number 7. Yeah. भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 7। जिनके पास भगवद गीता है, भगवद गीता खोले। जिनको गूगल करना है वो गूगल कर सकते हैं। अर्जुन says, have everyone got that verse? सबके पास आ गया है श्लोक? कार्पण्य दोषो अहता स्वभावा पश्चामि त्वां धर्म समुचितसा यक श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या आ रहा है? स्ट्राइकिंग वर्ड, शिष्यस्य अहम, मैं शिष्य हूं। तो शिष्य क्या क्या, कब शिष्य बना? अर्जुन कैसे शिष्य बना? कार्पण्य दोषो अहता स्वभाव प्रश्यामिताम धर्म समूढ़ चेतसा। So we'll understand this in detail. Karpanya, miserliness, and dosho, by weakness. I am affiliated. Let's go to the translation. Now I am confused about my duties and have lost my composure because of misery and weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple, a soul surrendered unto you. Please instruct. इसमें बहुत, इस श्लोक में बहुत अर्थ छुपा हुआ है। ऐसा तो आप पढ़ सकते हो कि प्रभु जी खास कुछ नहीं है, बट बहुत है। पहला चीज, अर्जुन पहले अध्याय में क्या कहता है? स्टार्टिंग ऑफ भगवद गीता जोर से कहता है, जाओ मुझे दुश्मन को देखना है, कौन हमसे युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं, आई वॉन्ट टू सी दैम। कृष्ण इमीडिएटली टेक्स अर्जुना इन फ्रंट ऑफ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। और वहां जाने के बाद आफ्टर सीइंग देम, उसके मन में एक बेचैनी आती। He gets jittered and he says, oh, how am I going to kill these people? They are my relatives, they are my teacher, they are my close friends. How can I kill them? मैं कैसे इन लोगों को मार सकता हूँ? और जैसे कृष्ण सुनते जाते हैं, अर्जुन कहते जाते हैं, oh, it's going to be tough. It's better I beg rather than fighting and killing these people. ये लोगों के खून के ऊपर मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? मुझे पाप लगेगा इनको मारने से, और जो राज्य में जीत भी जाऊंगा तो भी मुझे उस पर पाप लगेगा। All that big big things, big big dialogue. Don't worry, सब लोग ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। I once was sitting in one of my with some of my relatives, और वहां पे एक हमारे दूर के रिश्तेदार थे, और उन्होंने कहा, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण ने भगवत गीता बोला क्यों। वहां अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, चुपचाप रथ को घुमा के वापस जा सकता था, वहां खड़ा रह के भगवत गीता क्यों? सो in my life I have come across many characters. He says Arjuna did not want to fight, Krishna instigated him to fight. Because if one doesn't read the Bhagavad Gita scrutinizingly, properly, he will never get to understand the real meaning of it.
So when Arjuna is afflicted with all these feelings, अरे मेरे गुरुजी को मारूंगा, मेरे ताऊ जी को मार दूंगा, मेरे सगे संबंधियों को मारूंगा, ये मुझे नहीं करना है, मुझे पाप लगे। और तब कृष्ण पूछते हैं, अरे ये कहाँ से तेरे अंदर ये दुर्बलता आ गई? तो बड़ा महाबाहो है, वीर है, और तेरे अंदर ये दुर्बलता कहाँ से आई? और तब बहुत सोचने के बाद अर्जुन tells this verse to Krishna, and he tells, now I am confused about my duties. तो पहला चीज क्या है आपको सीखना है यहाँ पे? गुरु की जरूरत कब लगती है और क्यों लगती है? क्योंकि हम लोग अक्सर जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में हम लोग द्वंद्व करते हैं। We are always confused. इसके लिए पूछना पड़ता है, प्रभु जी क्या करूं, ये करूं या नहीं करूं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। So this means what? We are always confused. Confused about my duty. What was Arjuna's duty? Arjuna's duty was to fight. क्षत्रिय का धर्म क्या है? लड़ना। तो लड़ने आया हुआ व्यक्ति, और सोचो कितना दिन से प्लान कर रहा है युद्ध का प्लानिंग कोई एक रात में होता नहीं। अभी महाभारत युद्ध का प्लानिंग में जहां पे 18 अक्षोणी सेना सामने सामने खड़ी थी, कौरवों के पास 11 और पांडवों के पास 7, टोटल 18 अक्षोणी सेना खड़ी थी सामने सामने, और सारे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में एक दूसरे के संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त बैठे हुए, और पूरा युद्ध का तैयारी हो करते वक्त रोज अर्जुन प्रतिज्ञा लेता था, आज मैं इतने लोगों को मारूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब शंख बज गया था, युद्ध के शंख, तब जाकर ये कंफ्यूजन आता। और हमारे जीवन में भी ये कंफ्यूजन आता है। मेनी टाइम्स वी गेट दिस कंफ्यूजन, जीवन में क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरी सोच सही है या गलत है, एम आई थिंकिंग करेक्टली और रॉन्ग, इज देयर एनी मिस्टेक इन माई थिंकिंग, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? ये जो व्यक्ति के अंदर ये दुविधा जो आती है, उस व्यक्ति को ही गुरु की जरूरत। कुछ लोग आते हैं, गुरु जी क्या सिखाएंगे आप हम, फिर वो क्या नहीं आता। आई नो सो मेनी थिंग्स, आई एम एन IT expert, I am expert in so many things, मैं तो बहुत बहुत ज्ञानी हूँ। Material knowledge and spiritual knowledge are two different things altogether. Material knowledge, as I told you, is only to fill your belly, but spiritual knowledge will put you in the right path. Material knowledge dies with time, but आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज आपके साथ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना। किसी का ऐड है ना वो, LIC। हाँ LIC का है ना, हाँ ठीक है। तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वो गलत है। LIC का वो ऐड गलत है। आप बोलेंगे कैसे? जीवन के साथ तो आप प्रीमियम भरते हो, और मरने के बाद घर वाले मजा लेते हैं, आप नहीं ले सकते। करेक्ट ना? आपका तो Yeah. हरिबोल हो चुका है, but who are enjoying the, who's enjoying the benefit, who's the beneficiary? The household people or the wife, husband, whatever it is, whoever they are. So आध्यात्मिक ज्ञान जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। I will say, प्रभु जी, हाउ कैन इट बी जीवन के बाद? अरे जब तक आपके साथ जीवन के बाद ना होता ना, अगला जन्म सुधारेगा कैसे? बाकी चीज अगला जन्म सुधारता नहीं है। लेट्स से you're a big doctor, engineer, lawyer, whatever it is, उससे क्या आपका जन्म मृत्यु का चक्कर बाहर निकल जाओगे क्या? You're a great IT professional, you are this, you are that, can you come out of the cycle of birth and death? No, आप बाहर नहीं निकल सकते। मगर
आध्यात्मिक ज्ञान, भले उस आदमी के पास कोई भी भौतिक ज्ञान नहीं, इंग्लिश पता नहीं है उसको, इंजीनियरिंग में एमबीबीएस कुछ भी नहीं पता, मगर उसको एक चीज पता है, और वो है भगवान कौन है और भगवान के पास जाने का तरीका। ये दो चीज उसके पास है, ये ज्ञान काफी है उसको भवसागर तरने। ये भवसागर क्या है? व्हाट इज दिस भवसागर? ये डायलॉग तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। व्हाट इज दिस भवसागर? Cycle of birth and death. साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो उसको भवसागर क्यों कहा गया? भवसागर क्यों कहा गया? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसको अगर भवसागर कहा गया है तो सागर कैसे हो? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आप समुद्र के किनारे जाके खड़े हो जाओ, कभी लहरें खत्म होती है? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ वेव्स? तो यहाँ पे थोड़ा दूर में 100 मीटर दूर में कुछ और वेव चल रहा है, यहाँ पे कुछ और वेव चल रहा है। हाँ? पूरा जू बीच में जाके खड़े हो जाओ, कितने लहरें आती हैं समुद्र के किनारे, और हर कोई लहरें एक ही टाइम पे नहीं आता है, एक एक जगह पे एक एक टाइम पे आता है, और उसका कोई अंत ही नहीं है, इट इज कंटिन्यूस। और कहते हैं संस्कृत में भव शब्द का अर्थ मीन्स, भव मीन्स टू टेक बर्थ अगेन, और सागर, इतने जन्म ले चुके हैं हम कि जिसका कोई अंत ही नहीं। दैट इज व्हाई दिस बर्थ इज कॉल्ड कंपेयर्ड विद भव सागर, birth which you take again and again and again, like the waves of the ocean। समुद्र की लहरों की तरह आप बार बार जन्म ले रहे हो, और क्या हो रहा है? लहर आने के बाद क्या होती है? खत्म हो जाता है, वापस पानी जाता है, वापस वही लहर बन गया, वापस गिर जाता है, वापस अंदर जाता है। वही हो रहा है हमारा साथ दिन। कभी हम गधे के शरीर में, तो कभी घोड़े के शरीर में, कभी शेर के शरीर में, तो कभी कॉकरोच के शरीर में, जन्म लेते लेते जा रहे हैं, बट जन्म लेने के बाद उसका अंत भी हो जाता है। और अंत कैसे होता है? बाय डेथ। और जैसे लहर खत्म होता है, दूसरा लहर आ जाता है, उसी तरह हमारा जन्म भी खत्म होता है और दूसरा जन्म शुरू हो जाता है। भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से तस्माद अपरिहार्य अर्थे नातम सोचतुम अर्हसि। नॉट क्लियरली सेज, जो जन्म लेता है वो मरेगा, और जो मरेगा वो वापस जन्म जरूर। इसके लिए मरने से डरना मत। और सबसे बड़ा चीज, किसको अमर बनना है? यहाँ पे किसी को बनना है अमर? ऋषिकेश, यू वांट टू बिकम अमर, इमॉर्टल? नहीं। कीर्ति, यू वांट टू बिकम इमॉर्टल? Not at all. व्हाई? What's the point? I व्हाट्स द पॉइंट? देन of just why one should fear death? yeah, that You know the best part of it, सबके लिए बताता हूँ, मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है। आप बाय डिफॉल्ट, हम सब अमर हैं। बाय डिफॉल्ट वी ऑल आर इमॉर्टल। हम कभी नहीं मरते हैं। भगवान क्या कहते हैं? नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चक्लयोदन्ति आपुनो सरस्वती मारुता। भगवान बार बार भगवत गीता में कितने श्लोक कहे हैं, कहते हैं कि भाई आत्मा कभी मरती नहीं, ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसे काटा जा सकता है, ना उसे सुखाया जा सकता है, ना उसे भिगोया जा सकता है, कुछ भी नहीं होगा। आत्मा इज परमानेंट। क्या मरता है? वो है शरीर। और शरीर के साथ हम किस चीज से डरते हैं? हमारा संबंधी चीजें जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं वो हमसे छूट जाए। दैट इज व्हाई वी फियर डेथ। अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पिताजी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, दैट्स इट। मेरे धन का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरा फ्लैट का, मेरी गाड़ी का। All this is connected to your body. Your soul is not connected to anything, any one of those things. Please understand,
We are immortal. But भवसागर किसका है? जन्म मृत्यु के चक्कर का भवसागर है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और इसका कोई अंत ही नहीं। जैसे सागर के किनारे में उठती हुई लहरों का कोई अंत नहीं होता, सिमिलरली देयर इज नो एंड टू आवर साइकिल ऑफ बर्थ एंड। So these are the small confusions we all have in our mind. पहला चीज, कभी किसी के मन में ये आता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस धरती पे मेरा क्या कार्य है? This question which arises in a human being is called as अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस सृष्टि का कर्ता कौन है, अगर कोई भगवान है तो भगवान कैसे दिखते हैं? These are the first things which questions we strike our mind. But confusion is only on the bodily level. Only on the bodily level. Arjuna was confused because he was in the bodily level. He was not talking on the spiritual level. Or when Krishna gave him the knowledge, did he give him knowledge about the body, or did he give him knowledge about the soul? He gave knowledge about the soul. That is why Bhagavad Gita is, किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है, हमारा ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान। हम किसे कहते हैं? हम अपने शरीर को हम कहें तो वो गलत है। And this understanding you get only from the Bhagavad Gita. Rather, even the Shastra also speaks the same thing, but it's very, very evidently or specifically mentioned in the Bhagavad Gita. So, a student, when confused, should approach a bona fide spiritual master, not a teacher. A teacher here I have defined as one who gives material knowledge, which is enough to fill your belly. But a spiritual master doesn't fill your belly. I repeat this twice in this lecture. The reason is one should note the difference between teacher and guru. Guru और teacher के बीच में, अध्यापक और टीचर के गुरु के बीच का अंतर यही है, उनका ज्ञान भौतिक ज्ञान है, जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत निचले स्तर का ज्ञान है। अगर आपको कुछ जीवन में बनना है तो भौतिक ज्ञान भी जरूरी है, बट you cannot stick to that as all in all. That is only a part of your life. The fullness is, your life is complete only when you have दोनों ज्ञान जब आपके पास हो ना, तब आपका जीवन का संपूर्णता होती है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। और भौतिक ज्ञान न हो, सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान हो, चल जाएगा, बट उसमें व्यक्ति फैनेटिक हो जाए। This leads to fanaticism. So one should have both knowledges to be successful in life. So here Arjuna continues to say that I am confused about my duties. Yudha ladu ya na ladu, and all the have lost all composure because of miserliness. Now, what is this miserliness? Can anyone explain? I know the new ones cannot explain, but at least the seniors can explain. Yes, पूजा माता जी, आप बताइए miserliness किसे कहेंगे? Come on, fast. You have to unmute and speak, Mother. Yeah. In the material concept, miserliness means you're not spending what you have, that money. That is called No. miserliness. No. Miserly doesn't not only means कंजूसी, you know. तो हिंदी में हम लोग miserliness को कंजूसी बोलते हैं, नहीं। Miserly मतलब ज्ञान की कमी होना, shortage of knowledge or very limited knowledge. जैसे व्यक्ति के पास बहुत कम धन हो देने के लिए,
उसी तरह ज्ञान की भी कमी को miserliness कहा जाता Okay. है. Miser because of miserly weaknesses. In this condition, I am asking you to tell me. See, यहाँ पे एक संस्कृत में जो श्लोक में जो शब्द यूज किया है बहुत बढ़िया है. Please try to understand. यक श्रेयसान निश्चितम ब्रूहि तन्मे. यक श्रेयसान का मतलब क्या है? जो मेरे लिए श्रेयस्कर है. ब्रूहि, ब्रूहि मीन्स टू स्पीक. मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है. यक श्रेयसाम निश्चितम. निश्चितम मतलब पक्का मेरे लिए जो श्रेयस्कर है. निश्चितम मतलब पक्का, परफेक्टली मेरे लिए श्रेयस्कर है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड श्रेय? यस ऋषिकेश, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड श्रेय? श्रेय का मतलब क्या है आपके लिए? कौन सी चीज श्रेय है? Important. Important. Okay. Affection. Affection. Shreya could mean affection. No. Prabhuji, can I tell? Prabhuji, No. Shreya. No, not you. Last. I want all the stalwarts to say first. हाँ. निकर माता जी बोलिए. ऋषिकेश, you said Important. 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 Okay. हाँ. निकर बोलो. बेसिकली तो श्रेय का मतलब श्रेष्ठ होता है ना, कि बेस्ट. What does best? Okay. Good. That is good. मैं बोलूं? हाँ. मैं बोलूं? हाँ. मतलब जो मुझे पसंद है लेकिन मेरे लिए अच्छा हो. Yes, perfect. हम दो शब्द का आज अर्थ समझेंगे. पहले श्रेय और प्रिय. हम लोग जीवन में अक्सर प्रिय शब्द में ही अटके हुए हैं. मेरे लिए श्रेय क्या है, उस शब्द की तरफ हम कभी अपने आप को कभी झुकाते नहीं. श्रेय और प्रिय. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हर कोई चीज जो प्रिय हो आपको, जरूरी नहीं वो आपके लिए श्रेयस्कर हो, बेनिफिशियल हो या आपके लिए फायदेमंद. फॉर एग्जाम्पल, if someone is drinking alcohol or smoking a cigarette, उसको क्या है? वो प्रिय है. ईटिंग नॉनवेज प्रिय है. जुआ खेलना प्रिय है. व्यभिचार करना प्रिय है. पीपल लव illicit sex, बट उसके लिए वो श्रेयस्कर नहीं है. इट इज नॉट गुड फॉर हिम. ही मे लव इट, बट इट इज नॉट फॉर हिज वेल बीइंग. अगर कोई बच्चा आके अपने माँ को कहे, माँ मेरे लिए, मुझे आप प्यार करती हो? माँ कहे, हाँ बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरे लिए आप कुछ पैसे खर्च करोगे? हाँ बेटा खर्च करोगी. अगर बच्चा माँ को कहे, माँ मुझे एक चॉकलेट चाहिए, माँ लेके देती. पर वही बच्चा 5-10 चॉकलेट दिन में खाने, तो वही माँ क्या करती है? मना करती. अब क्यों माँ का स्वभाव बदल गया? उसी माँ ने तो 20 चॉकलेट लेके आए, और उसमें से अब माँ गिन के 2 ही चॉकलेट देती है बच्चे को, बाकी पड़े हैं. वाई? बिकॉज उसके लिए प्रिय जरूर है, बट उसके लिए श्रेय नहीं. सो प्लीज अंडरस्टैंड, a guru is one who will not tell you what is pleasing for you, but he will tell you what is good for you. बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए. गुरु कभी भी आपको वो चीज नहीं बताएगा जो आपको बहुत प्यारी. जैसे दवाई बहुत कड़वी रहती है, बच्चे को पसंद नहीं होता है, पर माँ फिर भी उसको, बच्चे को प्रेम से, कभी डांट के, कुछ भी करके पिलाएगी जरूर उस दवा को. क्यों? वो बच्चा उसको उसकी बीमारी से मुक्त करेगा. तो प्लीज अंडरस्टैंड, one student who knows his spiritual master is going to give him what is good for him. He is the correct student.
he falls in the category of a student. वो एक सही शिष्य है जब तक वो उस क्रम में नहीं आएगा कि मेरे लिए ये श्रेयस्कर है, भले ही ये मुझे प्रिय नहीं है। मगर भौतिक दुनिया में क्या होता है, एक टीचर जो है, भौतिक टीचर में बात कर रहा हूँ जो स्कूल में जाते हैं, एक टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, नहीं होमवर्क करके आना चाहिए, पढ़ाई अच्छा दिन का पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए। तो बच्चा क्या बोलता है, ये टीचर बेकार है। और एक टीचर जो है वो कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, क्लास में मस्ती करो, कुछ भी करो, वो टीचर क्या बोलते हैं, टीचर को क्या बोलते हैं, अरे बहुत अच्छा है, बहुत मस्त टीचर है, उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है ना। सो भौतिक दुनिया हो या आध्यात्मिक दुनिया हो, दोनों दुनिया में अगर आपको अपने गुरु का चयन करना है, सिलेक्शन करना है, तो ऐसा गुरु सेलेक्ट करना जो आपको श्रेय चीज दे, ना कि प्रिय चीज। प्रिय क्या चीज है, क्लास में मस्ती करने देना, खाना खाने देना, घूमने देना, क्लास वैसे कुछ भी करो, टीचर को बोल दो आज मेरा पेट खराब है, मैं बाहर जा रही हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कुछ भी, मतलब बच्चे आजकल तो बहाना निकालने में एक्सपर्ट हैं। तो ये वैसा ना आध्यात्मिक दुनिया में चलेगा, ना भौतिक दुनिया में चलेगा। सो प्लीज, व्हाट इज अर्जुन टेलिंग कृष्णा, यक श्रेयसा निश्चितम, परफेक्टली, भले मुझे पसंद ना हो फिर भी वो मुझे बताना। परफेक्ट, निश्चितम, निश्चित मतलब श्योरली, करेक्टली, परफेक्टली, भले मुझे पसंद ना हो। यक श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि, ब्रूहि मीन्स टू स्पीक, टेल मी, बताओ मुझे। शिष्यस्य हम, मैं आपका शिष्य हूं। एंड देन द मोस्ट पावरफुल लाइन, शिष्यस्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। What does this mean? I surrender unto you. जब तक बच्चा या भक्त गुरु के सामने समर्पण नहीं करता, उसको कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को भगवत गीता तभी सुनाई जब ये श्लोका बोला गया था अर्जुन द्वारा। और ये श्लोका में क्या किया उसने, एक तो श्रेय चीज मांगी, प्रिय चीज नहीं मांगी, और दूसरी बात ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य मतलब आप मेरे गुरु। उसने ये नहीं कहा कि आप मेरे गुरु हो, उसने ये कहा कि मैं आपका साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मेरा नमस्कार, और मैं आपके चरणों में सरेंडर हो चुका। नाउ टू थिंग्स वी अंडरस्टैंड। फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज शरण लेना, प्रपन्नम। हु इज अ सरेंडर्ड पर्सन, व्हाट इज अ आइडेंटिफिकेशन, कैसा पता चलेगा ये व्यक्ति शरणागत है। यस, अपेक्षित आप बताइए। यानी अगर शरणागत व्यक्ति का पहचान कैसे, हाउ विल यू वो आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन इज सरेंडर्ड। वो गुरु ने, यानी जो गुरु ने चीजें बताई है वो फॉलो करने का, जीवन में उतारने का कोशिश करता है, फिर उतार लेता है, उसको बोल सकते हैं। रोते रोते भी करेगा, हंसते हंसते भी करेगा, कैसे करेगा। इनिशियली रोते रोते करेगा और बाद में उसको मतलब पता अभी तो चले। अभी मतलब आप अभी रोते रोते कर रहे हो सब। नहीं नहीं। यस, अपेक्षित, सॉरी, ऋषिकेश, टेल मी। सो जो भी सब फॉलो कर रहा है एंड गुरु की आज्ञा मान रहा है विदाउट एनी डाउट। आई एम आस्किंग व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरेंडर्ड पर्सन, निखर शुड गिव मी द आंसर। प्रभु जी आई थिंक मतलब जितना मेरे को समझ लगा कि एक सरेंडेड पर्सन का पता लगेगा कि एक बंदा है जिसके ऊपर हैप्पीनेस और ग्रीवेंसेस का असर नहीं दिख रहा है सिचुएशन को लेके। ओह माय गॉड,
वो स्थित प्रज्ञ होता है माता जी। अरे सर क्या हो गया? He's not a surrendered person, वो स्थित प्रज्ञ हो गया। नहीं कि मतलब उसने सरेंडर कर दिया ना कि अब जो अच्छा हुआ बुरा हुआ भगवान जिन दिया है, नहीं तो फिर एक अच्छा रामचरितमानस में एक अच्छा दोहा है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि कहिए, जैसा भगवान रखते हैं वैसा रहना पड़े। तो एक आदमी बोलता गया, और कैसे हो, और क्या, दाहे विधि राहे राखे राम, ताहे विधि रही है वैसे रहना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है। नो, दैट इज नॉट सरेंडेड मान। सरेंडेड मुक्ति का लक्षण वैसा नहीं। प्रभु जी, कैन आई ट्राई? हाँ, प्रभु जी, one who leaves all his desire, I think so. अरे बाबा, सरेंडेड आदमी डिजायर सब छोड़ छाड़ के हाँ साधु बनेगा क्या? बाबा जी बन के घूमोगे? आर यू सरेंडेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? टेल मी दैट, हिमांशु। No, Prabhu ji. Okay. No, then you will not get spiritual knowledge at all. Okay, let me see what Kirti has got to say. Maybe a person who Huh? willingly accepts anything and everything, I guess. Okay, Accepting, maybe accepting is the word. okay, let's make it very, very simple. Let's not make it complicated. Suppose I show a gun to Rishikesh. Rishikesh, तो पहला क्या करेगा? Sir, surrender. Right? I give up. Yeah. I give up. I'm surrendered. And I say, Rishikesh, sit. Rishikesh, get up. Get up. Rishikesh, turn around. Rishikesh, walk. Walk. Rishikesh, sit. Baba, sit. Means what? You have given your control over yourself. Yeah. You are given the control in the hand of a spiritual master. What does the Bhagavad Gita represent when Krishna is holding the rails and Arjuna is sitting or standing behind in the Ratha? When you surrender yourself to Krishna, आप अपने आप को भगवान को समर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ, तो भगवान आपको आपका जो जीवन का जो रथ है ना, जीवन का जो रणभूमि है, उसमें से बाहर निकालेंगे। But you will have to first surrender first. Surrender means, if I show the gun to Rishikesh and I say, Rishikesh, sit. नहीं, मेरा बैठने का मन नहीं है. Or I say, Rishikesh, get up. I won't get up. That means you're not surrendered. You're still having your own control over yourself. So that is why Arjuna is telling it, Shishyasya swadhimam tvam prapannam, I am surrendered unto you. आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। उस परिस्थिति में ही Krishna started speaking the Bhagavad Gita, the first guru, the true teacher who taught us the art of living. People are interested in learning the art of dying. कैसे मरना है वो सीखना चाहते हैं, बट यहाँ भगवत गीता जीना भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है। जीते जी कैसे जीना है और मरने के बाद कहाँ जाना है, तो दोनों का लक्ष्य होना जरूरी है। जब तक जिंदा हो, नहीं मरने के बाद तो मुझे ठीक है, मरने के बाद जाना, अब क्या करोगे, अब कैसे जियोगे, तो ये लक्ष्य भी भगवत गीता हमको सिखाती है, और मृत्यु के बाद कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है वो भी बताता है। तो भगवत गीता गिव्स यू ड्यूअल नॉलेज। So when Arjuna surrendered, then Krishna started speaking the Bhagavad Gita. तो आध्यात्मिक दुनिया में आपको अगर भगवान के प्राप्त करना है और गुरु से ज्ञान लेना है, तो इन चीजों का, इन गुणों का होना जरूरी है। एक, जो गुरु कहेगा वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। You have a firm conviction that whatever the spiritual master is going to give me or tell me is going to be excellent for me. Not just good, it will be the best for me. Now here a question may raise, Prabhuji,
आप कैसे कह सकते हो? जैसे अगर कोई बच्चा डॉक्टर के पास जाए या कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के पास नीली, पीली, हरी, लाल, सफेद सब रंग की गोलियां होती, और वो देखता है पहले वाले पेशेंट को उसने लाल गोली दी, और जब ये गया पेट दर्द के साथ तो उसको हरी कलर की गोली, और पेशेंट लड़ने लगे डॉक्टर के साथ, अरे उसको आपने लाल गोली दिया, बढ़िया अच्छा लाल लाल बड़ा बड़ा गोली था, हमको छोटे छोटे हरी गोली दे रहे हो, हाँ ये तो नाइंसाफी है। अरे डॉक्टर को पता है उसकी बीमारी अलग है, आपकी बीमारी अलग है। सिमिलरली different students, the guru or the spiritual master gives various different instructions. It will vary, but one should not say, "Arey, you are partial with me. You are given him a better instruction, but you are not given me a better instruction." उसको अच्छा आपने मार्गदर्शन किया, मुझे नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर उसके गुण के अनुरूप गुरु उसको ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। So now ये गुरु के पास ज्ञान, ये शिष्य बनने के लिए ये गुण है। और शिष्य किस भाव से गुरु के पास जाना चाहिए? इन व्हाट वे शुड अ टीचर, शुड अ स्टूडेंट गो एंड टेक नॉलेज फ्रॉम अ टीचर? इसका श्लोका नंबर, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34 आई थिंक, भगवद गीता 4वां अध्याय वर्स नंबर यस 34। सब लोग भगवद गीता 4वां अध्याय वर्स नंबर 34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। Got it? Yes. And what does this say? Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the. So this is part 2 of our lecture today. First we saw at what point the spiritual master or the guru gives knowledge to his student. When he is surrendered, when he wants to know about, when he knows that he is confused. कार्पण्य दोष हता स्वभाव पश्चामि त्वं धर्म समूढ़ चेतसा, समूढ़ चेतसा मतलब कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है। मारना तो अधर्म है, बट भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अरे मार। कृष्ण ने अर्जुन को बोला निहत्य कर्ण को मार। अरे ये तो पाप है। अरे पाप नहीं है, इस चीज को पूरी तरह से समझ लो तो बिल्कुल पाप नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान लेके हम लोग प्रवचन देने निकलते हैं तो तकलीफ वहीं अटक। ज्ञान पूरा लो तो आपको कोई डाउट्स कंफ्यूजन नहीं रहेगा। So first and foremost, what did I say? Qualities are revised once again. He should be, if he is having confused, he should go to a proper spiritual master. Second, he should surrender and he should be confident. The third thing, most important thing is he should be confident कि जो भी ज्ञान गुरु देगा हमको वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, भले मुझे वो प्रिय नहीं। प्रिय होगा अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, बट वो आपके लिए भला नहीं। उसके बाद उसी गुरु के पास कैसे ज्ञान लेना है, ये वर्स नंबर 34, 4वां अध्याय वर्स नंबर 34 में लिखा गया है। जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल। जस्ट सच्चाई जानना चाहते हो, सच्चाई यहाँ किस चीज की सच्चाई कहा गया है? आध्यात्म ज्ञान की सच्चाई। आध्यात्म ज्ञान की सच्चाई जानना है तो आपको एक गुरु के पास जाना है। और उनके पास कैसे पूछना है?
तत्विधि तत्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब हाथ जोड़ के। बोल, एक छोटी सी कहानी बता दूं। जब एक बार रावण खड़ा था अपने महल के बालकनी में और नारद मुनि जा रहे थे, तो उसने बुलाया, ओ नारद मुनि इधर आओ, इधर आओ। देखो सब लोग, सब देवता मुझसे डरते हैं, तू ये एक अकेला ऐसा घूमता रहता है, इधर आओ, पहले मेरे को ओम का शब्द जाओ, टेल मी द मीनिंग ऑफ ओम। तो नारद मुनि बोले, नहीं नहीं, ऐसे किसी को भी हम ओम शब्द का अर्थ नहीं सिखा सकते, पहले उसको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तो फिर मैं सिखाऊंगा, मेरे शिष्य को ही सिखा सकता हूँ, किसी अरे गहरे न तो खेरे को नहीं सिखा सकता। तो तुरंत रावण बोला, चलो अभी से मैं चेला तुम गुरु, चलो अब सिखाओ। खड़े खड़े बन गया ना चला, खड़े खड़े बन गया कि नहीं चला, और क्या बोला, अब से मैं चला तू गुरु, चल अब बोल, कम ऑन स्टार्ट स्पीकिंग। विल गुरु से विल नारद मुनि टीच हिम? नारद मुनि से इस भाव से मैं नहीं सिखाऊं। उसने तुरंत अपना शस्त्र निकाला और गुरु पे फेंकने लगा, मतलब नारद मुनि पे फेंकने लगा। नारद मुनि ने क्या किया, सब अपने तपोबल से एक शस्त्र को पकड़ा और उसको वापस दे दिया। He could not do anything to Narad Muni. So what do we learn from this? You have to go with a humble mode. Humble mode matlab, again it goes back to shloka number 1 which we discussed, 2.7. उसमें क्या बोला था, भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं शरणागत हूँ। यहाँ पे वो शरणागत नहीं था, रावण शरणागत नहीं था, और वहां पे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको शरणागत लेना, हम्बल रहना पड़ेगा, दीन रहना पड़ेगा, और फिर लॉर्ड सेज तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इंक्वायरी करो। परिप्रश्न मतलब इंक्वायरी, मगर इंक्वायरी कैसे करना है, गुरु की सेवा करना। One should serve the spiritual master. Without serving the spiritual master, you will never get knowledge. इसके लिए पहले जमाने में गुरुकुल में गुरु जो शिष्य होते थे, वो गुरु के सब सारी तरीके से सेवा करते थे। जंगल में से लकड़ी काट के लेके आना, गाय से दूध निकालना, ये वो, मतलब जितना भी सेवा कर सकते थे गुरु का, वो लोग करते थे। और क्यों करते थे, कि जब तक सेवा नहीं करोगे, वो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान का उपदेश नहीं करेंगे। और कौन सा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और वो भी ज्ञान मन से निकलेगा, तभी उस शिष्य के मन में जाके, हृदय में जाके बैठेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगेन 3 things to be understood here. फर्स्ट, तत्विधि, विधि मतलब उस जान ले, अच्छी तरह से जान ले। परिप्रश्नेन प्रणिपातेन, पहला हम्बल, सेवा करते हुए आपका इंक्वायरी होना चाहिए, तब वो आपको भगवान का ज्ञान देंगे। और कैसा देंगे, क्यों दे पाएंगे, वो व्यक्ति क्यों ज्ञान दे पाएगा, क्योंकि ज्ञानिना तत्वदर्शिनः, उस ज्ञानी व्यक्ति ने तत्व को देखा है या समझा है। Now what is the word तत्वदर्शिनः, या तत्व को देखा है या तत्व को समझा है, ये तत्व शब्द का अर्थ क्या है, what is the meaning of तत्व? Prabhupada ji writes that word meaning, that truth, of the truth, sorry, of the truth. ये truth क्या है, याद रखना, तत्व इस शब्द का मतलब है संपूर्ण रूप से उसका ज्ञान, टोटल नॉलेज। किसी एक पक्ष का ज्ञान लेना अच्छी बात नहीं है, टोटल ज्ञान लेना चाहिए।
तो जिस व्यक्ति ने टोटल ज्ञान रखा है, जैसे हमेशा मैं तत्वता का एग्जाम्पल देता हूँ, हनुमान जी गए थे लंका सीता मैया को ढूंढने के लिए, और उन्होंने क्या किया, वापस आने के बाद क्या बताया रामचंद्र जी को, मैंने सीता मैया को देख, बस यही कहा? नहीं, वो सीता मैया को देखने के बाद उन्होंने राक्षसों का मुआयना किया, कितनी सेना है, कितने लोग हैं। रामचंद्र जी ने उसको एक ही काम बोला था, जाके सीता मैया को ढूंढ, मगर वो अकलमंद व्यक्ति क्या था, सीता मैया को भी ढूंढा, कहाँ रखा है, पूरा लंका का जीपीएस मैप निकाल लिया, उसको अपने आप को उसने रावण के सामने पेश कर लिया, रावण को धमकी भी दिया, लंका को जलाया भी और वापस आया। तो तत्वता मतलब उसने सीता मैया को देखा, पर तत्वता में कैसे देखा, सारी परिस्थितियों को जानते हुए ने देखा। तो उसी तरह भगवान को जानना बोला तो भगवान का तत्व जो है वो तीन पक्षों में। What are the तीन पक्ष? तीन ways of seeing God. ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। Now let's understand this in a very short manner. ब्रह्मन मतलब अक्सर लोग क्या कहते हैं, भगवान कैसे दिखेंगे, लाइट की तरह दिखेंगे, है ना, सुना है कि नहीं, पिक्चरों में भी कभी कोई दिखाते हैं ना कुछ लाइट वैसा वही। तो व्हाट डज दिस मीन, भगवान लाइट है, एलईडी लाइट 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट, 100 वाट, कितना वाट का बल्ब है? अरे बाबा, इट इज दैट एफल्जेंस ऑफ गॉड, ही इज रेडिएंट। हम लोग सब वो क्रीम बीम लगाते हैं ना टू बिकम लुक रेडिएंट, है ना, एड्स आती है ना, ये सीरम यूज करो, ये यूज करो, वो यूज करो। अरे भगवान को एज इट इज ही इज रेडिएंट, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। ही इज नॉट मेड ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स, ही इज सच्चिदानंद। तो ही इज रेडिएंट, एंड वो जो एफल्जेंस जो बाहर निकलता है हमारी भौतिक आंखों को वो दिखाए, उसके लिए हम देख नहीं पाते हैं। इट्स लाइक सपोज कार, एक गाड़ी आ रही है आपके आंख के सामने, रात का समय है और फुल हेडलाइट चल रहा है, आपको कुछ दिखेगा? कुछ नहीं, सिर्फ आपको दिखेगा कुछ लाइट आ रहा है, और आप उस लाइट को देख के आपके बच्चे को बोलेगा देख गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, बच्चा बोलेगा कहाँ, वो तो लाइट आ रही। तो कम ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचेगा, लाइट आ रही, और असली ज्ञानी व्यक्ति क्या समझेगा, उस लाइट के पीछे एक गाड़ी है, उस दिव्य ज्योति के पीछे गाड़ी है, भगवान है। सिमिलरली ये हुआ ब्राह्मण। परमात्मा, भगवान हर कण में मौजूद हैं, हर एक के शरीर में हैं, हर एक के आत्मा के साथ परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं। So this is second understanding, that Lord is in the form of Paramatma also. And last but not the least, भगवान का खुद का एक स्वरूप है जो शास्त्रों में वर्णित है, और वो है भगवान का स्वरूप। और भगवान का स्वरूप चतुर्भुज रूप भी हो सकता है, 2 हाथ का रूप भी हो सकता है, जैसे विष्णु स्वरूप हो सकता है, या राम और कृष्ण की तरह 2 हाथ के स्वरूप में भी हो सकता है, या नरसिंह देव की तरह आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का, या कूर्म, या मत्स्य, कोई भी अवतार हो सकता है, क्या वराह, कोई भी अवतार ले सकता है, बट भगवान का एक शरीर है। लॉर्ड इज नॉट जस्ट अ लाइट, लॉर्ड इज नॉट जस्ट परमात्मा। These are all 3 types of understanding the same thing. जैसे आप लोग सब खाने में टाटा नमक डालते रहेंगे, डालते ना? तो जब भी आप नमक डाल रहे हो खाने में, क्या डाल रहे हो, मिस्टर टाटा को डाल रहे हो? हाँ और ना, हाँ कैसे, तो टाटा ने ही बनाया वो प्रोडक्ट, तो हाँ तो नहीं, मगर इंसान को नहीं डाल रहे, हम थोड़ा नमक डाल रहे हैं दाल में। तो ये हुआ उसका ब्राह्मण, लाइट फॉर्म।
उनकी एक शक्ति को डाल रहे हो ना, टाटा ने जो बनाए वो शक्ति को डाल रहे हो। फिर टाटा का एक ऑफिस भी है, बड़ा ऑफिस है, तो उसको परमात्मा स्वरूप माना गया। और लास्ट में स्वयं टाटा है जिनको उनका स्वयं भगवान स्वरूप माना गया। So this is a very simple way of understanding the three swarupas of God, and that is Tattvataha. And this is what a spiritual master has seen. He has seen God in Tattvataha. भगवान को तीनों स्वरूपों में गुरु जब समझ लेता है, वही व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकता है और वही ज्ञान देगा। बट कंडीशंस बहुत सारे हैं। क्या क्या कंडीशंस है, किसको याद है? जल्दी से बताओ। चलो। Serve your spiritual Mhm. master. Serve your spiritual master. Serve your spiritual master. Okay. What else? सरेंडर। Surrender. Okay. जो गुरु कहेंगे वो हमारे लिए श्रेय रहेगा। जो श्रेय करेंगे वो हमारे लिए श्रेय करेंगे, ये विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और He has to be confused. no, he is not necessary to be confused. Means that time he But comes. if he is confused or he is not having the discrimination, उसके मन में वो बुद्धि नहीं, उसके पास वो बुद्धि नहीं है सही और गलत में भेदभाव करने का, तो उसको कंफ्यूज स्टेट कहा जा सकता है। And what else? He has to be humble. He has to approach a spiritual master in a humble mode, not like Ravan. चल आज से तू गुरु, मैं चला, ऐसा नहीं भाव होना चाहिए। आप जैसे बोलोगे वैसे। दैट वो भाव से जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसको तत्वतः में ज्ञान समझ में आएगा। सो गुरु का क्वालिटीज भी मैंने सिखा दिया। जो भगवान को पूरी तरह तत्वतः में जाने वो गुरु होता है, और आपको उस तरफ जो मार्ग दिखाता है उसे गुरु। और शिष्य के इतने गुण होने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो अपने आप को शिष्य समझना चाहिए। शिष्यस्य अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। वो ये नहीं समझना चाहिए तू भी मेरे जैसा ही है, तू भी मेरे जैसे कुछ सीखा है, तो ठीक है तुझे मुझसे थोड़ा ज्यादा आता है, बट यू आर नॉट माय टीचर, यू आर जस्ट सीनियर। नो, if you want to learn in spiritual world, you have to accept him as your, not just a senior or superior. He is a cup about you. What he knows, you don't know. So first and foremost, please surrender to him. Okay, with this, we'd like to close today's session. Anybody has got any doubts?